Dear students, Assalamu alaikum. Today we will do the electronic configuration of first 20 elements. Cambridge में CI's O level में only first 20 elements की electronic configuration included है. So we will start from hydrogen till calcium. Okay. So first of all we will start with hydrogen. आप जैसे देख सकते हैं इसका 1 इसका mass number है और 1 ही इसका atomic number है. तो हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता. इफ यू सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम जी 1 - 1 वील गेट 0. तो इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है. ओके, हाउ वी विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. ये देखें आप, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फर्स्ट शेल में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1. और ये इन विच पीरियड विल इट लाई, the first period because it has one shell. So what is the period? Period tells how many shells are there of an element. It is basically the horizontal row in the periodic table. तो हाइड्रोजन के पास जैसे एक शेल है तो it will lie in the first period, right? Okay. हीलियम, हीलियम के पास 4 mass number है और 2 इसका प्रोटॉन नंबर है. Okay. So in the first shell, 2 electrons will come because in the first shell only 2 electrons can come. ये देखें. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2, right? And in which period will it lie? In the first period because it has one shell, right? Okay, lithium. लिथियम का mass number 7 है और इसका जो है प्रोटॉन नंबर वो 3 है, राइट? तो फर्स्ट शेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1, 2. And where will the third electron will go? Obviously in the second subshell. Okay, ये देखें. अब सेकंड शेल में ये जब इलेक्ट्रॉन आ गया है, that is 1. So how will I write the electronic configuration? Like this: 2 for the first shell, comma for the other shell I will write 1 क्योंकि आपके जो next shell है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. So this is the electronic configuration of lithium. ये किस पीरियड में लाई करेगा? In the second period because there are 2 shells only. ये देख लें. और किस ग्रुप में लाई करेगा? In the first group because it has only one electron in the valence shell. Basically simply means के one valence electron, so it will lie in the first group. Okay. Beryllium. Beryllium में क्लास 9 इसका mass number है और 4 इसका proton number है, so it will have 4 electrons. Okay. First shell में हमारे पास 2 electrons आ जाएंगे, like 1, 2, और the next two will go in the second shell. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 2, राइट? और ये किस पीरियड में लाया करेगा? अगेन इन द सेकंड पीरियड बिकॉज देर आर 2 शेल्स. और किस ग्रुप में? इन द सेकंड ग्रुप बिकॉज देर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? देन वी हैव बोरॉन. बोरॉन का 11 मास नंबर है और 5 इसका प्रोटॉन नंबर है, तो इट विल हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स. ये 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में आ जाएंगे अगेन और जो रिमेनिंग 3 आ जाएंगे वो सेकंड शेल में, लाइक दिस. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 3 and it will lie in the second period because there are 2 shells. And in which group? Group number 3 because there are 3 valence electrons. इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ग्रुप नंबर 3 में लाई करेगा. ओके. कार्बन, mass number 12 and proton number 6. Okay. So ये भी अपने electrons first 2 shell में distribute करेगा. So in the first shell there will be 2 electrons and then the remaining 4 will come in the second shell like this. तो इसकी electronic configuration होगी 2, 4, right? और ये किस period में lie करेगा? In the second period because it has again 2 shells.
और किस ग्रुप में करेगा, ग्रुप नंबर 4 में, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नाइट्रोजन, मास नंबर 14 और प्रोटॉन नंबर 7। So in the first shell, there will be 2 electrons, while the remaining 5 will come in the second shell, like this: 1, 2, 3, 4, 5. And how will I write the electronic configuration? Like this: 2, comma 5. Okay. And it will lie in the second period because there are 2 shells. Okay. And ये ग्रुप 5 में इसकी प्लेसमेंट होगी क्योंकि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के क्लास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एज यू कैन सी फ्रॉम इट्स प्रोटॉन नंबर। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। सो ये भी अपने 2 शेल में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अगेन फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लाइक दिस 1, 2। और रिमेनिंग 6 सेकेंड शेल में आ जाएंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट। एंड हाउ विल आई राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये देखें, like 2, 6, this is its electronic configuration। और ये पीरियड नंबर 2 में लाई करेगा क्योंकि इसके पास भी 2 शेल्स हैं। और ये ग्रुप नंबर किस ग्रुप नंबर में होगा, 6 में होगा, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। और नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन, इसका मास नंबर 19 है और प्रोटॉन नंबर इसका 9 है। तो इट विल हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसके एटम को देखें, तो इन द फर्स्ट शेल there will be 2 electrons, and the remaining 7 will go in the second shell, like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। right? तो इसके इलेक्ट्रॉन्स completely फिल हो गए हैं। और ये कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, लाइक 2, 7। राइट। और ये किस पीरियड में लाई करेगा, पीरियड नंबर 2 में, बिकॉज इट हैज 2 शेल्स। और ग्रुप नंबर 7 में क्योंकि इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। नाउ वी हैव नियॉन। नियॉन के पास, नियॉन का जो मास नंबर है वो 20 है, एंड इट्स प्रोटॉन नंबर इज 10। सो लेट्स ट्राई दिस एलिमेंट। ओके। अब ये क्लास अपने करेगा बेसिकली फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा, और जो बाकी 8 हैं वो करेगा सेकंड शेल में, लाइक दिस: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये इसके पूरे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, तो दैट इज 2, 8। और ये किस पीरियड में लाई करेगा, पीरियड नंबर 2 में, बिकॉज इसके पास 2 शेल्स हैं। तो इट विल लाई इन द सेकेंड पीरियड एंड इन ग्रुप नंबर 8, बिकॉज ये इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट। ओके। नाउ सोडियम, मास नंबर 23 एंड प्रोटॉन नंबर 11। तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और सेकंड शेल में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गए 8, 2 + 8 = 10। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चला जाएगा। तो इसकी कन्फिग्रेशन हम इस तरह लिखेंगे: 2, 8, 1, and it will lie in the third period because it has 3 shells। और ये किस ग्रुप में लाया करेगा, ग्रुप नंबर 1 में, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। राइट। नाउ वी हैव मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मास नंबर 12 है, प्रोटॉन नंबर 12 है। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इस तरह करेगा, 3 शेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेगा। लाइक फर्स्ट शेल में अगेन 2 आ जाएंगे, और सेकंड में 8, ये, और बाकी लास्ट 2 ये थर्ड शेल में चले जाएंगे, ऐसे। तो इसकी कन्फिग्रेशन अगर हम करें तो होगी इसकी 2, 8, 2। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये किस पीरियड में लाया करेगा, पीरियड नंबर 3 में, बिकॉज इट हैज 3 शेल्स।
ओके, उसके इस ग्रुप में करेगा, ग्रुप नंबर 2 में, बिकॉज इन द लास्ट शेल देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ वी हैव एल्यूमिनियम, mass number 27 and proton number 13. ओके, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये देख लें आप, और सेकंड शेल में 8, and in the last shell we'll have the remaining 3 electrons. 2 plus 8 equals 10, so last 3 आपके लास्ट शेल में चले जाएंगे। ये देख लें जो आपका थर्ड शेल है। तो इन दिस वे द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,8,3। ओके, ये किस पीरियड में लाया करेगा? पीरियड नंबर 3 में, बिकॉज इट हैज 3 शेल्स। ओके, ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर 3 में लाया करेगा क्योंकि इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देख लें जो इसका वैलेंस शेल है, इसमें वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, तो इसलिए ये ग्रुप नंबर 3 में लाई करेगा। ओके, सिलिकॉन, मास नंबर 28 एंड प्रोटॉन नंबर 14। ओके, फर्स्ट शेल में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, और सेकंड शेल में आ जाते हैं 8 लाइक दिस, so we are left with remaining 4 electrons, तो 4 ये लास्ट शेल में आ जाते हैं, जो थर्ड शेल है, लाइक दिस, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 8 4, और ये पीरियड नंबर 3 में लाई करेगा बिकॉज इट हैज 3 शेल्स, एंड इन द फोर्थ ग्रुप बिकॉज देर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के एटम को अगर हम देखें तो इन द फर्स्ट शेल there will be 2 electrons, in the second there would be 8, or now we are left with 5 electrons, so the 5 electrons will go in the third shell like this. So now we will write its electronic configuration, that will be 2 8 5, and this will lie in the third period because it has 3 shells, और ये फिफ्थ ग्रुप में लाई करेगा क्योंकि इसके लास्ट शेल में 5 valence electrons हैं, it has only 5 valence electrons. Okay, let's move to sulfur, mass number 32 and proton number 16. ये देख लें, ये न्यूक्लियस है, so first shell में again there will be 2 electrons, in the second there will be 8 like this, और remaining 6 थर्ड शेल में चले जाएंगे ऐसे। Okay, so the electronic configuration will be इसकी क्या होगी, 2 8 6, और इसका जो पीरियड नंबर है वो क्या होगा, 3, बिकॉज इट हैज 3 शेल्स, और ग्रुप नंबर 6, if you count the total number of electrons in the last shell, 1 2 3 4 5 6, so there are 6 electrons because it has 6 valence electrons, so इसका जो ग्रुप नंबर है वो 6 होगा। ओके, क्लोरीन, क्लोरीन का अगर हम देखें क्लास, तो इसका न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 लाइक दिस, और लास्ट शेल में 7। Let's count the number of electrons in the last shell. 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जैसे फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड शेल में 8 हैं, और थर्ड शेल में 7 है। that is its electronic configuration, right? और अगर हम देखें इसका ये किस पीरियड में लाई करता है, इट लाइज इन द थर्ड पीरियड बिकॉज देर आर 3 शेल्स, और ग्रुप नंबर 7 में बिकॉज देर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? आर्गॉन, आर्गॉन का क्लास जो मास नंबर है वो 40 है,
और इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 18 है, सो देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट्स चेक दिस एलिमेंट. ओके, फर्स्ट शेल में क्लास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. इन द सेकेंड शेल दे विल बी 8 electrons, right? And in the third shell they will be 8. So its third shell is fully complete. तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या होगी? 2 comma 8 comma 8, and it will lie in the third period because there are 3 shells. और किस ग्रुप में? ग्रुप नंबर 8 में, क्योंकि इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, पोटाशियम. पोटाशियम का मास नंबर 39 है और प्रोटॉन नंबर 19 है अगेन. तो इसके पास कितने होंगे? इसके पास होंगे 19 इलेक्ट्रॉन्स. इसका अगर हम न्यूक्लियस देखें तो ये, तो फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 2. और सेकंड में 8, इस तरह, इन दिस वे, while in the third 8. Now it's one electron is left, so that will come in the fourth shell like this. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2 8 8 1. That is its electronic configuration, and it will lie in the fourth period because there are four shells. And in which period, sorry, in which group? In group number 1, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, so that is why it will lie in the first group. Okay, now we have calcium. Calcium class, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है because its proton number is 20. और इसके फर्स्ट शेल में क्लास, जैसे ये इसका एटम है, न्यूक्लियस में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सेकंड शेल में 8, like this. And in the third shell there will be 8 electrons. So remaining 2 will go in the fourth shell like this. So what will be its electronic configuration? That will be 2 8 8 2, and the period number it will have 4 because there are 4 shells. And so it will lie in the second group because इसके लार्ज शेल में 2 electrons हैं. Okay, so that's all. We have done the electronic configuration of the first 20 elements. हमने first 20 elements की electronic configuration कर ली है. I hope all of you have understood what I have explained. So okay, Allah Hafiz, take care.